तो यहाँ पे हमने बात करी कि सिनेमा, इंडियन सिनेमा की बात करें तो इंडियन सिनेमा लैक्स अ नेशनल यूनियन लाइक वी हैव दी सैग आफ्ट्रा, जो एक यूनियन है वो हॉलीवुड एक्टर्स टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द पोटेंशियल यूजर अब्यूज बाय एआई बाय द स्टूडियोज, जो थ्रेटन कर सकते हैं ऑब्वियसली देयर लाइवलीहुड. सो दिस कैन बी वन पार्ट, बट अगेन ये दिस इज ओनली फॉर हैविंग अ कलेक्टिव स्टैंड, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेज करने के लिए, और डायरेक्टली एआई को रेगुलेट करने में ये स्टेप हेल्प नहीं करेगा. सो वी हैव टेकन अप जो स्टेप्स हम ले चुके हैं और क्या किया जाना चाहिए. मानसी दी, देयर वाज वन फेक कैचर थिंग आल्सो. उधर लिखा हुआ था, इफ यू कुड जस्ट हाईलाइट इट. कहाँ पे मेंशन है? ओके, यू कैन टेक दिस अप व्हाइल मेकिंग द फेक पॉइंट. कैचर, फोर्थ कॉलम में ही ऊपर, C2PA के ऊपर ही फेक कैचर. नहीं मिला, कहाँ पे है? ठीक है, ले लेना. फेक कैचर एक पार्ट हो गया, और सेकंड सोल्यूशन हमने बात करी कि ये भी हमें डिजिटल पिक्चर्स को ऑथेंटिकेट करने में हेल्प कर सकते हैं. फेक कैचर spot the blood flow in the pixels of videos, measures how क्विज ले लो much मानसी it is नीचे में. क्या कह रहे हो? क्विज क्विज अच्छा, ये हाँ, वाला. ठीक है. Only female member of the drafting committee of the Indian Constitution was Durgabai Deshmukh. Original Constitution of India, it was handwritten and calligraphed. So name of the calligrapher was Prem Bihari Naren Raizada. So calligrapher was him. And which animal is the national aquatic animal of the India in Indian Constitution? Gangetic dolphins. How many languages are recognized by the scheduled languages? 8th schedule की बात करते हैं. 22 languages are there. Then was the first Indian to introduce the concept of Constituent Assembly to draft the Constitution. So he gave the idea, M.N. Roy, in 1934. What is the minimum age required to become the Prime Minister of India? So it is 25 years. And identify the gentleman to the right of Gandhi ji. So Nandlal Bose, जो कल picture आई थी उसमें you can spot. So okay, important questions and answers. So we need to be aware about all these things. मिनिमम एज को 25 ही क्यों रखा गया? 21 नहीं रख सकते हम? It is 25. So again, rules would be announced so far regulation of deepfakes and synthetic media is concerned. So this term can be noted down, synthetic media. So synthetic media basically signifies the opaqueness, the ambiguity, or we can say ki unethical element which exists in the media, social media, in terms of जो videos, images, fake videos हैं, fake information जो circulate होती है, misinformation जो रहती है. So Arnold Dix is the engineer जो help कर रहे हैं हमें in the tunnel rescue effort. So he's an Australian. So you can see कि यहाँ पे भी ये हमने spot कर दिया काफी बार, सलक्यारा टनल उत्तरकाशी में. So technical support has been provided by him to help He is a evacuate. president of Switzerland-based 79 Nation International Tunneling and Underground Space Association. तो इनके पास एक स्पेशलिटी है, उनके पास एक तरह से एक्सपीरियंस है विद रिगार्डिंग टू टनल ऑपरेशन, इसलिए वो हेल्प कर. So we can basically reduce the time. हमने जो ये decision लेने में time लगाया कि we will obviously have to call someone from Australia as like an expert. So India में हमारे पास कोई ऐसे experts नहीं है. Specifically again disaster management के context में we need to have the experts specifically. So this can be again cited as a part कि और क्या किया जाना चाहिए future disasters को prevent करने के लिए. So Fatima Bibi, she was the first woman judge in the Supreme Court. So she's no more. And 1950 में she was the first student to complete a degree in law with full marks in all the subjects. And then she emerged first in a competitive examination which is conducted by the Public Service Commission, joined the judicial services as a munsif.
So this is again important. And she was the first woman member of the country's income tax appellate tribunal also, before becoming the first Muslim woman to enter higher judiciary as a judge in Kerala High Court in 1983. So important landmarks made by her. And she was born basically 1927 when she was on, completed her schooling from the Catholic High School, undergraduation in chemistry from the University College Srivananthapuram. So if we talk about important judgments made by her, so again, she was the governor of Tamil Nadu also, and her most controversial decision was to administer the oath of office in secrecy to former Chief Minister Jayalalitha within hours of AIDMK securing a majority in the assembly. So this is a part of her role as governor of the state. So we can basically look for her important judgments also. So studying sea ice amid the penguins and the southern lights. So like Oshik, is it a specific phenomena जब हम southern lights बोलते हैं? So you can make this clear. So it is very difficult to study the sea ice because again of the climatic conditions, and the snow is also very thick and deep. And यहाँ पे अगर हम बात करें, it is unlike any workspace in the world. So it is why we actually want to study the sea ice. This can be again provide us important insights in terms of कि climate change के context में we can get something important in terms of the impacts, or किस scale का impact हो रहा है. Apart from this, we're studying the Antarctic ice. So basically British Antarctic Survey भी किया जाता है. And Rothera Research Station is located there on the Adelaide Island, West Antarctica में it is located as part of the scientific survey. So एक important fact हो गया, Adelaide Island on Western Antarctica. And then there is this Defiant also. This is a UK based project which stands for Drivers and Effects of Fluctuations in Sea Ice in the Antarctic. So ground-based radar system is also being deployed to study the impact. So that is the main purpose and objective of studying the sea ice. And then इसको हम compare भी कर रहे हैं जो Arctic में हमें ice मिलती है, sea ice मिलती है. So this year we recorded the worst sea ice ever and lowest since 1986. So obviously sea ice is melting, so the sea level would also increase, and biodiversity loss जो threat है, that would also increase. More warming of oceans is happening, more eutrophication. Sea ice area is almost 1 million square kilometer less than the previous lowest, which was there in 1986. So it is obviously a clear sign of decline. So this is a real climate concern. So polar oceans, they are also getting warmer, and other oceans are also getting warmer, causing extreme weather scenarios. So we can also expect even polar regions, maybe heat wave like conditions can occur in future agar things continue in this manner. So WHO के सर्वे के हिसाब से misuse of antibiotics की वजह से जो basically we are seeing कि इसकी वजह से efficiency decline हो रही है again, क्योंकि जो antibacterial resistance है वो ज़्यादा increase होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए efficiency कम हो रही है. So misuse of antibiotics is denting their efficacy, spawning resistance bacteria, जिसकी वजह से 10 million deaths भी हो सकती हैं, हो चुकी हैं या हो सकती हैं by 2050. So responsible usage ही हमें ये इस चीज से सेव कर सकता है on proper prescription after from the doctor.
So here we can see US intercepts the drones which have been launched from Yemen. So US warship patrolling the Red Sea intercepted multiple attack drones launched from the Houthi control areas in Yemen. So Houthi एक rebel group है Yemen में. So Yemen में we are basically seeing Saudi Arabia and Iran on the opposite sides. And यहाँ पे आप देख सकते हो अभी recently USA के context में भी axis of resistance. Houthis have developed themselves as a part of axis of resistance of Iran's allies and proxies retaliating against the Israel's war with Hamas. So इसका link again जो हम बात करते हैं कि whether it would जो Hamas war है whether it would be turning into a wider conflict also. So कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत element हमें ये देखने का मिल रहा है कि Houthis in Yemen, they have launched a series of drones and missiles towards Israel since October 7 after start of the Israel-Hamas war. And they've also threatened to target Israeli shipping also. So obviously since USA supports Israel, so again USA का यहाँ पे इस area में Yemen में भी intervention देखने को मिल सकता है. USA का attack role यहाँ पे भी हमें increase होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले time में. सो प्रेरणा पूछ रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है. तो बेसिकली अगर सपोज आपको कोई डिजीज होता है तो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है. तो जब आप वो मेडिसिन बहुत ज्यादा वही मेडिसिन लेने लग जाते हो तो जो बेसिकली उस मेडिसिन का इम्पैक्ट है या उस डिजीज को टैकल करने में इम्पैक्ट है वो उसका कम हो जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है. तो इसलिए वो मेडिसिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको हेल्प नहीं करेगी अगर रिपीटेडली विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर आप खुद ही उस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हो. So this is a simple idea behind antibiotic resistance. So ये even हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी देखने को मिलती है एंड लाइफ स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिल रही है. So do we यमन की क्या बोल रहे हैं? यमन के केस यूएन बोलता है कि जो यमन है वो वर्ल्ड का मतलब सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहा है अभी. तो उस केस में इंडिया क्या किसी भी वे में हेल्प कर रहा है यमन की? कौन हेल्प कर रहे हैं यमन की? इंडिया ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे. एज पर माय अपडेट आई डोंट थिंक सो अभी इंडिया का वहां पे कुछ ऐसा इंटरवेंशन हुआ है. अपार्ट फ्रॉम यूएन पीस कीपिंग फोर्स इंडिया का उसमें डेफिनेटली हमेशा कंट्रीब्यूशन रहता है. बट औशिक यू कैन मेंशन अगर इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस. इंडिया कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया हमेशा हेल्प करता है. जैसे फूड सिक्योरिटी का इशू था यमन में तो इंडिया ने भेजा था ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स फॉर द डिलीवरीज ऑफ द फूड एंड ऑल्सो द एड इकोनॉमिक एड. तो इंडिया करता है. ठीक तो है. दूसरा औषध मुझे ये बोलना है, इवैक्यूएशन हुआ था इंडियन सिटीजन जो यमन में रहते हैं. दूसरा औषध कि ये दो तरीके के प्रोग्राम हैं. एक तो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, एक यूएनएचसीआर ह्यूमन कुछ करके होता है. तो उसमें बेसिकली फूड, मेडिसिन और जो पैरामिलिट्री स्टाफ होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी 3 तरीके के असिस्टेंट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यमन को दी जा रही है. हाँ इवन रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है वो भी है. ठीक है. So need a regulator like SEBI for artificial intelligence. So again, this is a debatable topic. क्या हमें कोई separate regulator चाहिए for artificial intelligence or not? जैसे SEBI है for the capital markets, RBI है for the banking market. So Prime Minister's Economic Advisory Council members उन्होंने suggestion दिया है that India needs a regulator that understands AI and pays attention to how it is evolving. Someone needs to be held accountable for AI's behavior just as a company's board members, they are held accountable. So again, abhi ispe these are very important dimensions highlighted by him कि regulator चाहिए. हमें समझना है कि AI perform कैसे कर सकता है, उसका behavior क्या है, कैसे वो और evolve हो रहा है, and accountability. So अकाउंटेबिलिटी वाला इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे वी अगेन कंपनी बोर्ड मेंबर्स है तो वी हैव समथिंग जिनको हम बेसिकली अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं. बट एआई के केस में सिंस वो एक टेक्नोलॉजी है तो आप किसको बेसिकली उनके डेवलपर को विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट एज अगेन अकाउंटेबल होल्डर्स फॉर अगेन कैसे कि एआई वुड बी मिसयूज्ड. सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड ये काफी कॉम्प्लेक्स भी है कि हम इसको अगेन कैसे एक्चुअली टारगेट करने वाले हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे.
So he said कि there needs to be skin in the game and ex ante accountability and calls for regular audits. So audits also ex ante accountability मतलब कि कुछ होने से पहले we have this thing very clear कि who will be accountable for any development related to AI, any negative outcome, any unethical usage of AI. So this is ex ante before the occurrence of any misuse or such kind of event. And obviously, the regulatory norms, they will also evolve with time, with changing nature of AI. System has to be put in place with manual override, just like circuit breakers in the financial market. So he says कि manual overrides भी ऐसा कुछ system में होना चाहिए AI system में, since again इसके पीछे एक software ही work कर रहा है. तो जैसे financial system में हमारे पास circuit breakers होते हैं, and यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए सो दैट अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड हो रही है तो उसका स्प्रेड हम कंट्रोल कर सके. सो काफी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम वी कैन जस्ट टेक अवे फॉर द डे. एंड बाकी तो विल कवर इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस इन डिटेल. ओके, सो आशिक, नाउ वी कैन कंटिन्यू विद इंडियन एक्सप्रेस. ये हम ले लेते हैं मानसी एक बार. मनरेगा ऑडिट क्रॉसेस 50% ऑफ द लोकल बॉडीज इन जस्ट 6 स्टेट. तो दिखाया गया है कि मनरेगा का जो डिसबर्समेंट है इन एवरी स्टेट्स, तो वहाँ डिफरेंसेस है हर एक स्टेट के बीच में. तो केरला इज द ओनली स्टेट टू कवर 100% ऑफ ग्राम पंचायत. मतलब जो भी मनरेगा काम होता है उससे के लिए ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नेंस. और इट इन्वॉल्व्स क्वालिटी चेक्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मनरेगा करता है, और मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है कि नहीं वेजेस में, एंड ऑल्सो इन द प्रोसीजर डिबेट्स. तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे भी केरला है जहाँ पर 100% इट हैज़ कवर्ड ग्राम पंचायत. तो इसको ये ले सकते प्रेरणा लेना है इसको. क्योंकि मनरेगा में देखा जाता है कि सोशल ऑडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटी करप्शन मैकेनिज्म इन द एक्ट. अब मनरेगा है क्या आंचल, एग्जैक्ट वर्ड? बेसिक फुल फॉर्म से पता होनी चाहिए. दिव्या, करुणा, प्लीज आंसर क्विकली. ये एक लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड. तो ये मनरेगा होता है. और जो मनरेगा फॉर द अनस्किल्ड लेबर्स अंडर डे जो स्किल्ड. मनरेगा की फुल फॉर्म होती है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर ही आया था. और बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट है मनरेगा. तो ये 2005 में. 3 चीजें हैं. हम्म. हाँ, तो इसमें सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है कि 100 मनरेगा आप काम किए, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि वो सही इस्तेमाल हुआ है मनरेगा का? तो सोशल ऑडिटिंग किया जाता है. तो सोशल ऑडिटिंग में कुछ सिविल सोसाइटी भी रहते हैं, बाकी एनजीओ भी रहते हैं, वो ऑडिट करते हैं कि मनरेगा का फंड कहाँ कहाँ सही इस्तेमाल हुआ है. तो अब है कि इसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन करता है? लेट डाउन, इट इज लेट डाउन बाय द कंट्रोल, सीएजी लेट डाउन करता है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर इट इज ओनली स्टेट, केरला जो ओनली स्टेट है जहां पर पीरियोडिक सोशल ऑडिटिंग पब्लिक हियरिंग होता है. सो एट द पंचायत लेवल, ताकि पब्लिक स्क्रूटिनी हो. एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं मनरेगा में, ग्राम सभा जो काम करते हैं, उनका एक तरह से अकाउंटेबिलिटी जनरेट हो इसलिए. तो पीरियोडिक पंचायत लेवल हाँ. पब्लिक हियरिंग, तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं केरला का भी. तो इसको लिख देना. और करुणा और प्रेरणा ले- ये बेसिकली 100 दिन ऐसे होते हैं साल के अंदर जब काम दिया हम्म, जाता है. तो उन 100 दिन की दिहाड़ी जो है मतलब उन्हें दी जाती है. और 100 दिन में उनसे जो भी लेबर जो काम होता है अनस्किल्ड जो करना चाहते हैं, जैसे कि अनस्किल्ड, टग हाँ. खोद दिया, उसके बाद नहर में अगर कोई मरम्मत करनी है वो कर दी गाँव में, उसके बाद कोई तालाब बनाना है, तो इस तरीके के काम उनसे करवा लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं. सो क्या ये ओपन एंडेड स्कीम है? लाइक अगर कोई भी अनस्किल्ड वर्कर जाएगा, डिमांड करेगा कि आई ऑल्सो वांट एम्प्लॉयमेंट, हाँ तो क्या हाँ ये ओपन हाँ, एंडेड स्कीम है? गारंटीड, गारंटीड है. और 100 दिन के लिए मिनिमम तो है ही. तो इसलिए हमने मनरेगा से देखते हैं कि अगर मनरेगा का अगर बढ़ा है एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब जॉब क्राइसिस है मार्केट में.
तो वो भी एक तरह से होता है, तभी तो दिया जा रहा है ना मनरेगा। और जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है ये कि इज वेज फिक्स्ड, तो वेज डिपेंड करता है स्टेट बाय स्टेट का, क्योंकि हर स्टेट के अलग इन्फ्लेशन है, उनका अलग स्टैंडर्ड इंडिकेटर है, तो हर स्टेट का तो डिफरेंट वेज होता है। हमने पढ़ा था आज से कुछ 2 दिन 4 दिन पहले, जहाँ पर केरला में हाईएस्ट वेज था, लेकिन नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में कम वेज था। तो डिपेंड करता है हर एक स्टेट के अंदर। और दूसरा औषक इसमें, जैसे कि अभी ओपन एंडेड की बात हुई, तो करुणा और प्रेरणा ये बेसिकली ओपन एंडेड का यहाँ पे यही मतलब है कि जो भी आप, अगर आप ज्यादा ही गरीब हो और आपको लगता है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं अनस्किल्ड हूँ, तो आप जो गांव के सरपंच या मतलब जो भी आपके लोकल ऑफिसर होते हैं उनके पास जाके अपना आधार कार्ड जमा कराइए, और वो आपको रजिस्टर कर देंगे कि ठीक है आपको मनरेगा स्कीम के अंदर रजिस्टर किया जा रहा है, आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स देखने के बाद और आपको काम पे बुला लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है ओपन एंडेड स्कीम। अब आते नेक्स्ट, अच्छा आर्टिकल था, इसको प्रेरणा डिटेल में ले लेना, 3 4 एरिया जो पॉइंट है इसमें। और नेक्स्ट आर्टिकल, काउ प्रोटेक्शन लॉ जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है, इट डज नॉट प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बीफ। बीफ ट्रांसपोर्टेशन में वो इम्पैक्ट नहीं करता है, वो इम्पैक्ट करता है किसको, कि ओनली एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काउ, बुल्स, बुलॉक, दैट टू इन प्लेस इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड द स्टेट। ये बस रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये बहुत मतलब छोटा डिफरेंस, लेकिन बहुत ज्यादा मायने करता है, क्योंकि ये इम्पैक्ट करेगा जो भी काउ विजिलेंटे को भी, और जो भी कम्युनल वायलेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ काउ। तो ये तो उसका एक तो सोल्यूशन औषक मैं बोल देता हूँ कि जब भी इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है इन स्पेसिफिक एनिमल्स का या किसी भी एनिमल्स का, तो बेसिकली जो आपका म्यूनिसिपल जो म्यूनिसिपैलिटी काउंसलर होते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, गांव के अंदर जो सरपंच होते हैं, उन वो आपको एक पर्ची बना के देती है जिसको बोला जाता है चिट। तो अगर आपके पास वो है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आप प्रॉपर उसको लेकर चलिए, फिर आपके साथ काउ विजिलेंटिज्म नहीं होगा। ठीक है। और इसमें बताओ कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या? ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन में दो का ऐसा जो डिफरेंस क्या है? फिर नेक्स्ट पेज, इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है बेसिकली 2004 से पहले जितने भी जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्हें मिलती थी, जिसमें कि उनका लास्ट ड्रॉन सैलरी की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी का आधा उनकी पेंशन बन जाती थी। अगर किसी की 60,000 रुपये सैलरी है आखिरी महीने में रिटायरमेंट के, तो उसकी पेंशन बन जाएगी 30,000 रुपये पर महीना। तो ये होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम बेसिकली 2004 के बाद आई है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी है, और जो अलग से जो आम आदमी है वो न्यू पेंशन स्कीम चाहता है वो भी इसमें दर्ज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सैलरी होती है पर मंथ, उसी के अंदर से कुछ अमाउंट पीएफ ग्रेजुटी के तौर पे कट जाता है, और वो अमाउंट एक सरकारी खाते में जाके जमा होता है, जिसमें सरकार भी कुछ पैसा उसमें डालती रहती है। तो एट द एंड ऑफ द योर सर्विस, मतलब जब आपकी 60 साल की सर्विस पूरी हो जाती है, व्हेन यू आर 60, जब आप रिटायर होते हो, तो आपको बेसिकली लमसम अमाउंट दिया जाता है जिसको पीएफ एंड ग्रेचुटी के तौर पे मिलता है आपको। तो वो करीब करीब होता है मतलब अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलती। आप जो जो एक नॉर्मल इंसान को पेंशन मिलती है 3,000 रुपये वाली पर महीना, वो आपको मिलेगी अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसओपी जिसको बोलते हैं। आपको वो वाली पेंशन नहीं मिलती। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों स्कीम्स के बीच में। हाँ, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो आपका जो लास्ट पेमेंट था उसके अनुसार 50% मिलेगा, तो उससे स्टेट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंडिचर है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में। और आई थिंक हिमाचल राजस्थान, हाँ। ये दो आज के टाइम पे ऐसे स्टेट है जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू कर दी गई है। हाँ उसे, और ऐसा भी डेटा पाया गया था कि 60% ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डायरेक्टली जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम में, 60% या फिर 50% इसी के आसपास था। तो So this is basically a good तो part on the part of the government, good step when we talk about revenue expenditure rationalization. यस। हिमाचल एंड दूसरी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। और ये हमने बात किया था कि गाजा सीज फायर टू बिगिन टुडे, और एड दूसरा विल फॉलो। औषक, दूसरा इसमें एक अनकन्वेंशनल सा, अगर आप कुछ बताएं कि किस तरीके से, मतलब अगर ओल्ड पेंशन स्कीम ना दें तो ऐसा क्या करें कि लोगों को, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है वो मतलब इस चीज को ना मांगे। कोई अनकन्वेंशनल सा या बताए तो, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर दे सरकार की वो ना ही मांगे, और बताया सरकार ने डॉक्टर किया वैसे। भी है। तो बेसिकली 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन जो है, पे कमीशन जो है सरकार ने निकालना चालू कर दिया, जिसके तहत आपका जितना भी सर्विस
कंडीशन के हिसाब से, आपकी जो टेन्योर के हिसाब से आपकी जो सैलरी है उसमें बहुत मेजर हाइक देती है अब सरकार। तो पेंशन नहीं देती है तो आपका डीए, एचआरए वगैरह सब कुछ उसमें 7th पे स्केल है, जिसके हिसाब से आपकी सैलरी मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 से ऊपर होती है गवर्नमेंट में, इवन ऑफ फ्यूल। तो हाइक इन द सैलरी अभी एक सरकार कर रही है। मतलब इसको ठीक है, एक स्टेप है, बट ये रिफॉर्म मेजर नहीं बोलूंगी मैं। इसकी वजह से अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बर्डन है वो तो और इंक्रीज हो जाएगा स्टेट के ऊपर। तो एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म आई वुड सजेस्ट कि वी ऑल्सो नीड टू फोकस कि जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, वन टाइम अमाउंट, उसको आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आगे कैसे यूज कर सकते हो। इवन इवन ड्यूरिंग योर सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज आप दे रहे हो, जब आप जॉब कर रहे हो, तो तभी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों कंपोनेंट बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ओके। हाँ मतलब पोस्ट रिटायरमेंट के प्लान का बात कर रहे हो। तो नेक्स्ट आर्टिकल में जाते हैं। तो न्यूमोनिया केसेस इन चाइना और WHO सीक्स मोर इन्फॉर्मेशन। तो न्यूमोनिया है क्या? इट इज अ रेस्पिरेटरी इलनेस एंड क्लस्टर न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड न्यूमोनिया। और सार्स एंड कोविड एक पार्ट है न्यूमोनिया का, जो न्यूमोनिया इम्पैक्ट करता है बेसिकली फाइब्रोसिस ऑन द इन द लंग्स, और उसको डैमेज करता है वो। तो रेस्पिरेटरी डिजीज है ये। और यहाँ पर और नेपाल इसमें प्रो और इसमें मोनार्की। हाँ इसमें बोलो मुझे प्रवेश। बोलना था निमोनिया वाले में कि बेसिकली 2000 आई थिंक 20 के अंदर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर कि व्हाट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो बेसिकली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इज द इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडिया फॉर द निमोनिया, एंड निमोनिया इज आई थिंक बैक्टीरियल डिसीज। सो ये दो चीजें बोलूंगा मैं। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस से हो रहा है हाँ, ये। नहीं आई थिंक बैक्टीरियल डिसीज होती है। बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है इसमें ना, बैक्टीरियल है। मतलब जो ब्रोंकाई में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता हाँ इंटरनेट पे दोनों होता है। लिखा कोई हाँ सिंगल कोड, सिंगल कॉज नहीं है। हाँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सबसे होता है। हाँ वायरस भी हो सकता है, वायरल निमोनिया। ऐसे कोविड-19 था, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है प्रवेश, ये ले लेना आप IR में। नेपाल जो रिलेशन है नेबरहुड में, कि नेपाल में जैसे प्रो ठीक है। मोनार्की और जो वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है KP ओली के, उनके बीच में कैसे क्लैश रहता है ये सब। ठीक। तो बेसिकली जो प्रो मोनार्की है, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिस्टोरिंग द मोनार्की, जो नेपाल में पहले था 2005 के पहले। उसके बाद से कम्युनिस्ट सरकार आया था, रेवोल्यूशन हुआ था 2005-6 के आसपास में। और उससे अभी तक कम्युनिस्ट है वहाँ पर। तो ये ले सकते हैं। ठीक है। अब तो वजिस्तान। नेपाल के बारे में अगर दो तीन चीजें मैं बोलूँ तो बेसिकली नेपाल इज कंसिडर्ड एज अ बफर स्टेट बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। नेपाल हम्म, के बीच में और हमारे बीच में मिलिट्री टाइज हैं, जिसमें कि उनके जो ब्यूरोक्रेट्स और उनके जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो भी दे गो ट्रेन्ड इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमीज। तो हम्म, उसके बाद जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं दैट इज आल्सो गिवन बाय इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके बाद अगर दोनों कंट्रीज के बीच में इश्यूज की बात करें तो बेसिकली दो इश्यूज हैं। एक तो Nepal is some sort of place where the terror outfits operate against India। तो उन पे बेसिकली हमारी एजेंसी काम करती है और दोनों कंट्रीज का कोलैबोरेशन है। और एक इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है जो पिछले सालों में चला भी है वो है काला पानी इशू। तो बेसिकली एक लिपुलेख, नदी है, लिम्पियाडोरा एंड काला पानी, तीन है। काला पानी। तो तीन। हाँ, तो हाँ, तो बेसिकली काली रिवर फ्लोज फ्रॉम हेयर। तो ब्रिटिश टाइम पे, कॉलोनियल राज के टाइम पे जो नेपाल की और इंडिया की जो टेरिटरी फिक्स की गई थी बेसिकली उस रिवर से की गई थी, जिसको काली रिवर बोलते हैं। तो नाउ वी आर हैविंग अ पाथ फॉर माउंट, आई थिंक कैलाश सरोवर, जो हमारा हम्म। एक पिलग्रिम साइट है। तो वो बेसिकली यहाँ से होके जाता है, तो उसके ऊपर नेपाल और इंडिया के बीच में थोड़े टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। हम्म। तो प्लेन से पूछ सकता है कि तीन एरिया है, काला पानी, लिम्पियादोरा एंड लिम्फू लेक। तो उसी रीजन के आसपास में इंडिया और नेपाल के बीच में प्रॉब्लम है। खैबर पख्तूनख्वा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में।
ये मैप में पूछ सकता है, ऐसे फरजों गैस फील्ड कहाँ था, तो ईरान में था, ये पूछा था एक बार। और तो यहाँ पे वजीरिस्तान कहाँ पर, पाकिस्तान में। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में ट्रीटी ऑफ सुगौली भी है, तो उसको भी मेंशन कर सकते हो कि कौन सा वॉर था उसके बाद इट वाज साइंड। एंग्लो नेपाल वॉर था 1816 का, ट्रीटी ऑफ सिकोल, ठीक है। जिसमें से हाँ, इसमें से जो देहरादून है और अराउंड हिली रीजन है, ये ब्रिटिश को मिला था। और भूटान, उसको अलग किया गया था। सिक्किम को भी अलग किया गया था। और जो गुरखा सोल्जर्स थे, वो हम्म बोले थे कि मैं काम करूंगा आपके साथ। तो वो बेसिकली उनका एम्प्लॉयमेंट मिल गया था ब्रिटिश आर्मी के अंदर। तो ये ट्रीटी ऑफ 1816 का सिकोल। ये हम लोग बात कर चुके हैं, गवर्नर कैन नॉट कीप द बिल पेंडिंग। स्टेट लेजिस्लेचर का अधिकार है कि वो जो भी एडवाइस दिया जाता है गवर्नर की तरफ से, उसको आप अ, नहीं मान सकते। ये हम लोग बात करेंगे पीएमएल से रिलेटेड जब जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का। डी फेक एड विद सेवरिटी रेज रेड फ्लैग। जो भी बेटिंग ऐप होता है, जैसे हमने बात किया था, लोन ऐप, फेक लोन ऐप्स, बेटिंग ऐप्स। ये बेटिंग ऐप है, ये एक तरह गेम ऑफ चांस है। इंडिया हमेशा से बात करते हैं कि गेम ऑफ चांस में डिस्टिंक्शन होना चाहिए बिटवीन द गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल्स। स्किल। तो गेम ऑफ चांस है बेटिंग का, तो उसमें हमेशा इंडिया एक रेगुलेट नहीं, इसको बैन करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी ऐसा बैन है नहीं। तो इसको कैसे प्रमोट नहीं किया जाए, इसको कैसे कर्व किया जाए, उस पर बात होती है। मैंने बात कर चुका है जस्टिस फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट जज। सो शी औषध, वाज एन गेम ऑफ इकोनॉमिक चैंस जो है, एम्पावरमेंट। जो ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग भी होती है, हम गवर्नमेंट के पास पावर है, इसको हम completely बैन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों नहीं किया? इसको जीएसटी के अंडर ही क्यों लेके आए हम? क्योंकि गैम्बलिंग से भी रेवेन्यू सोर्स है, गैम्बलिंग भी, और स्टेट का अधिकार है इसमें। सरकार का इसमें, मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें नहीं है, स्टेट के पास है ये राइट्स, आई थिंक। आप बता सकते हो और दूसरा दूसरा कि कंप्लीट बैन इज आल्सो नॉट अ feasible way. हाँ हाँ रेगुलेशन हाँ। अनटिल अनलेस कंप्लीट बैन तभी किया जा सकता है जो बहुत ज्यादा हार्म है सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल गन्स, अब AK-47 नहीं रख सकते कोई भी, तो कंप्लीट बैन है उसके लिए। तो ऐसे तो कुछ ऐसा कुछ चीज है जिससे कंप्लीट बैन, पर ड्रग्स हो गया तो कंप्लीट बैन है। हम्म लेकिन जो सोसाइटी में एक होता है ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टाइप, हाँ, वैसा मतलब अगर चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं बोल नहीं। सकते कि 100% गैम्बलिंग इलीगल पर्पसेस के लिए ही हो रही है, या उसमें सिर्फ ब्लैक मनी आ रहा है। हाँ, तब हो सकता। हम्म तो इससे बात हुआ था कि इनका क्या रोल था, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट वुमेन जज। तो इनका एक केस में बैठी थी विद रिस्पेक्ट टू द कर्नाटका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एक्ट 1991 में। सी अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी स्टेट अथॉरिटी। ये में उन्होंने बैठा था, बात किया था। सी सर्व्ड एज मेंबर ऑफ NHRC, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी थी। तो हमने बात की थी डी फेक कैसे मॉनिटर किया जाए, और ऐसा कोई ऐप है जिससे आप डी फेक को पकड़ सकते हो। तो फिर ने हाईलाइट किया था फेक कैचर, कैसे यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी। वाटर क्राइसिस इन दिल्ली, हमेशा ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है प्रवेश? इसमें आपको कुछ ओपिनियन है दिल्ली जल बोर्ड के हिसाब से? हमेशा ये न्यूज़ में तो रहता इसमें है। दो
नहीं, इसमें काफी चीजें हैं कि एक तो जो कंजेस्टेड कंस्ट्रक्शन होती है और हम्म हैवी डिपेंडेंस ऑफ वाटर, हैवी डिपेंडेंस ऑफ वाटर होते ही म्यूनिसिपल पाइपलाइंस वाटर सप्लाई जब होता है तो उससे बेसिकली लीकेज हो जाता है। तो लीकेज होने से और जो सीवर लाइंस होती है वो बेसिकली दोनों बिल्कुल नियर बाय होती है, तो चांस रहता है पोर्टेबल वाटर, मतलब वो जो वाटर है उसको सीवरेज वाटर से मिलने का, और वो फिर सप्लाई रोकनी पड़ती है। एक कारण ये। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनकी टोपोग्राफी जो है दिल्ली के अंदर, जैसे कि एक पालम रीजन है, उसके बाद एक रोहिणी रीजन है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे रीजन है टोपोग्राफी के हिसाब से जहाँ पर जो पानी का लेवल है, ग्राउंड वाटर जो है, मतलब और जो सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन दी है उसको डालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और वहां तक पानी पहुंच नहीं पाता, तो टैंकर फैसिलिटी दी जाती है। तो जब टैंकर फैसिलिटी दी जाती है तो उसमें भी इशू रहते हैं कि टैंकर टाइम पे नहीं आता है, ये सब होता है। तो एक नंबर ये जल बोर्ड का दो ये दिक्कत है। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो प्राइवेट वाटर सप्लायर्स हैं ना, आज के टाइम पे पंप खुल जाते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं वो पंप खोल लेते हैं विदाउट द परमिशन या फिर विद परमिशन फ्रॉम द वाटर डिपार्टमेंट। तो उससे होता ही है कि वो कार्टलाइजेशन कर देते हैं और मतलब एक नेक्सस बना लेते हैं विद द लोकल ऑफिशियल्स होते हैं वाटर डिपार्टमेंट कि आप पानी जो है मतलब रिलीज मत करवाइए, और हमारे यहाँ से जो कैन में पानी भर के और लोगों के घर में सप्लाई करेंगे एंड वी विल टेक मनी फ्रॉम देम, उसका हाफ हम आपको दे देंगे। तो तो बेसिकली तीन ये इंपॉर्टेंट करप्शन चीजें, भी होता है। तो तीन करप्शन, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो पानी के, हाँ, नहीं होता है। पॉल्यूशन, लीकेज और करप्शन। हाँ, और कुछ अमाउंट जो फ्री वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड किया जाता है वो भी इनजुडिशियस यूज में रिजल्ट ही होता है कि इतना फ्री है तो इतना तो आप यूज ही कर ही लो। हम्म और एक लास्ट चीज मुझे बतानी है औशक कि जो दिल्ली के अंदर वाटर सप्लाई होता भी है उसमें बेसिकली जो यमुना रिवर है उसके वाटर की प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं तो उनमें भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, मतलब अ, कि इंजीनियरिंग फैसिलिटी टाइम पर नहीं हो पाती है वहाँ पे। उसके बाद जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है वो बेसिकली नहीं होते, तो इस वजह से डिले हो जाता है वाटर सप्लाई में। हाँ, और जो जहाँ तक जुडिशियल यूज की बात है तो उसमें हम वाटर मीटर्स की जो डिजिटल मीटर्स हैं, डिजिटल वाटर मीटर्स, उनका भी हम कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं उसको रोकने। हम्म, हाँ, so we can say कि ठीक है। there exists limited number of water plants compared to the demand of water. हम्म नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें योगा के बारे में कहा गया है कि हरियाणा में कैसे प्रमोट किया जा रहा है योगा को, एंड इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन योगा। कैसे, तो योगा असिस्टेंट, आयुष योगा असिस्टेंट, इसको बताया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके तहत उनको नौकरी मिलेगा और वो काम कर सकते हैं। योगा सहायक, इट इज मेंट टू इंश्योर द कॉमन पीपल गेट बिकम प्रैक्टिशनर एंड मास्टर ऑफ योगा इजली। तो इससे जो $1 बिलियन का इंडस्ट्री है योगा, बाहर कंट्री में भी और इंडिया में भी है, तो इसको कैसे टैप किया जाए और कैसे, और जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है उसको भी डील किया जाए। तो इससे कर योगा मानस पोर्टल ऐप क्रिएट किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन है और हरियाणा सरकार के द्वारा। तो एक, तो जो वर्ड है ना, योगा सहायक, आयुष योगा असिस्टेंट, योगा मानस पोर्टल, ये सब ले लेना। India expressed surprise concern, said not their policy. White House on foiled plot to kill Pannu. तो प्रवेश, अभी हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि कनाडा के द्वारा भी, यूएस के द्वारा भी, पाकिस्तान तो हमेशा बोलते आ रही है, तो इस सब कंट्री में भी एक तरह से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि इंडिया अपना जो किल एजेंट है उसको भेजती है और फिर अपने जो लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट, उसको मारती है।